been saying that I think at the title of the bill itself, I think if we only talk of poor, it is misleading. And we should say it should be housing for unorganized sector workers and urban poor. I mean, there may be dependence of the workers who can no longer work, and those we can title as urban poor. But we should by all means in the title of this bill avoid if people are not working and people are considered as thieves or lumpen proletariat or something. It's the title of the bill. Strictly avoided, so we should say it is housing for unorganized labor and urban poor. I strongly urge the working class dimension should be recognized in presenting this bill. And also this regularizing the eviction. Of course, we have to speak of the rights of in case, but we should be very, very careful that this is not taken as a justification for eviction. So if we say there may be urgent cases, 10%, 20% or something, and rural service really what 80% is recorded and what 10 or 20% gets evicted. How can we monitor? So there should be real procedures in implementation to make sure that such a bill cannot be misused for the justification for eviction. Because in principle, we want to save all evictions, and the whole tendency is totally the other direction. I'll just reinforce whatever everybody has been saying, but I have few issues. Chapter 3, point number 3, it says the state and the authorities shall, within a year of coming into force of this, frame or revise master plan and urban planning schemes to provide adequate land and other facilities for the urban poor, after considering all the relevant factors, including number of the urban poor and the places of employment. But here I very strongly feel that a sentence like people will be incorporated during planning of the plan, master plan, it's very important because nobody knows about them, none of their ideas are taken into account, and the master plan is created, keeping it to mind and assuming that there are no urban poor. That's one. And the point, see, many of the policies and schemes have already been made, keeping in mind the poor or the slum dwellers, but then these policies and schemes are not properly implemented. So if we want to work on it, we need to have a proper, recognized citizens machine who can monitor the schemes from time to time basis, and also the government machinery who can kind of monitor the whole process. Rights during eviction, point number 6, it says relocation site. The authority shall finalize the relocation site with the facilities in place prior to the eviction. Well, I want that I insist that it should also include that all these priorities and the address of the relocation site should be published in a local newspaper which is read in that community specifically, so that people are aware of where they are going to be relocated, and also pasted on some important walls so that people who are not present on that particular day can go through the paper. Thank you. I'm referring to chapter 3, point number 1. We're talking about right to housing. I think we need to speak about the urban poor who are serving in the city. Because when we speak about slum dwellers, we are excluding a big segment of people who are serving in the city, who contribute to the workforce, but who have no entitlements. So therefore, I would like this 3.1 to be read as the urban poor who are working in the city rather than residing in slums. When it comes to the second point about eviction,
We are talking about what should be done in eviction. But what happens to people who have already been evicted, which means a large segment of the people in cities? What happens to their rights which have been already violated? Are we taking care of that in the bill? And what is the machinery that we are putting in place in order to include people into the planning and process when eviction has to take place, if it has to take place? And therefore, who determines that eviction takes place? And what are the points that to be considered? I think these criteria need to be made very black and white. So therefore, we really know what are the criteria against which the government has a right and where people need to be taken care of. Thank you. ये बिल एक्चुअली अर्बन को स्लम जब हम बोलते हैं अर्बन स्लम को रहना है, तो इसमें मेरे को एक बेसिक पॉइंट ये है कि बहुत वेरी अनईजी आर वी एक्सेप्टिंग पुअर पीपल, आई मीन पीपल टू बी पुअर. तो अर्बन पुअर या अर्बन स्लम्स को हम वैसे ही रहना है क्या, या हम गवर्नमेंट से ऐसा बिल ले लेंगे जहाँ हर एक citizen of the India should have a house and it should be a fundamental right. I don't know how far the bill is saying that. And I also felt that there are very kind of some general statements, and like International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights itself is not complete. I have gone through that covenant and I felt that the language that the covenant has is not gender very specific or gender probe. When we are saying eviction, which means somewhere we are accepting it. Eviction हो सकता है, मगर as everybody was saying, 6 months time is not enough. First of all, there should be public hearing at least 2 years prior, because people need to take mentally, they need to settle down for the change, even if it is much, whether it is for the public interest means whose public? Public means who? Which public the government talks about. So that public interest means that also needs to be very specifically said. And the National Habitat and Housing Policy also does not talk about much gender equality. So that also needs to be taken care of. When the compensation and rehabilitation takes place, and when we are talking about the community, and when we are talking about the urban poor, which means we are talking about the urban poor household. So the whole government survey, application form, anything, it talks about head of the family. So head of the family means you are accepting a man with children kind of family. Which means again, women having a second status there. So how are we going to address this? This needs to be also taken into the consideration. And when rehabilitation takes place, compensation takes place, it has to be in the name of women. And there should be an account, and then औरत के नाम पे एक अकाउंट खोल के कॉम्पेंसेशन में उसका स्ट्रेस भी ऐड करना चाहिए. उसका फैमिली फीलिंग का जो भी स्ट्रेस रहता है उसको कैसा हम वैल्यू कर सकते हैं, उसका इमोशनल कल्चरल नीड्स को कैसा रिहैबिलिटेट कर सकते हैं. जरूर और हर एक कॉम्पेंसेशन रिहैबिलिटेशन के नाम पे जो भी फंडा मिलते हैं वो नेशनल लेवल पे सब स्टेट में विमेन के नाम पे. और एविक्शन नहीं होगा, एविक्शन शुडंट बी नेवर, दैट शुड बी द मेन. मैं एक दो जो मेरी नजर में काफी बुनियादी मुद्दे हैं उसकी तरफ सवाल उठाना चाहूंगा. और इंदु ने जो कहा उनसे काफी, इंदु और धनंजय उनसे काफी हद तक सहमत होते हुए मुझे लगता है कि इस तरह का एक जिस तरह से टाइटलिंग किया गया है हाउसिंग फॉर द अर्बन पुअर, मुझे व्यक्तिगत रूप से इसमें काफी समस्या दिखाई पड़ती है.
क्योंकि अगर किसी आबादी के अगर 5% या 10% हिस्से की हम बात कर रहे हो और उसके लिए एक स्पेशल बिल बनाए तब ये एक अलग बात है। लेकिन जहां हिंदुस्तान के शहरों में 70 से 80% लोग वो गरीब की श्रेणी में आते हो, तो उनके लिए अलग से बिल बनाने की बजाय मुझे लगता है हमको एक हाउसिंग के ऊपर पॉलिसी, हाउसिंग के ऊपर बिल की बात करनी चाहिए, जो यही मेन स्ट्रीम है। अर्बन पर कोई जो है वो अलग नहीं है, यही मेन स्ट्रीम है। और बल्कि जो अमीर है उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन कि कैसे उनको ज्यादा, अगर उनके पास पैसे ज्यादा दाम लेके वो मकान ले सके, उनके लिए कोई अलग स्कीम बने। ये मुझे लगता है कि इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज जो मेरी नजर में महत्वपूर्ण है वो ये कि जैसे कि बात हो रही है, हमको स्लम्स को हम निश्चित रूप से हम सब लोग एविक्शन के खिलाफ हैं। हम लोग नहीं चाहते कि रेलोकेशन हो। तो ये जिस रूप में लिखा गया है उसमें तो काफी प्रॉब्लम है। ये एज्यूम कर रहे हैं और सरकार को पूरा अधिकार दे रहा है कि आप रिलोकेट कीजिए, लेकिन इन शर्तों पे कीजिए। तो ये प्रीमाइस तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। इसके आगे जाके मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमको कहीं ना कहीं इस बात को इस रूप में फ्रेम करना है, जैसा इन्होंने कहा कि ना सिर्फ हम एविक्शन के खिलाफ है, बल्कि अर्बन डेवलपमेंट की जो पूरी नीति है जिसने आबादी के इतने बड़े हिस्से को, दिल्ली जैसे शहर में जहां पे 70% लोग जमीन के 15% हिस्से पे रहते हैं, ये जो डेवलपमेंट पैराडाइम है ये अनएक्सेप्टेबल है। और लोगों को अगर रहना पड़ रहा है इस तरह के मानवीय हालातों में, तो इस पैराडाइम को एक हद तक बदलने की जरूरत है। और लैंड के स्तर पे लैंड जस्टिस की बात मुझे लगता है, और लैंड रिफॉर्म की बात हमको कहीं ना कहीं इसमें इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। दोहराना नहीं चाहती हूँ, तो 2-3 पॉइंट्स माइक सामने, तो कॉलिन पास में बैठे वो सुन रहे मेरे पॉइंट्स को। एक है कि बहुत सारे पॉइंट्स आ चुके हैं, मगर ये जो शब्द है एनक्रोचमेंट, एविक्शंस, ये सब शब्दों को हमें जो भी नया फॉर्म लेगा उसको पूरा हटाना पड़ेगा। एक चीज है जो पुराना संघर्ष से, आवास की संघर्ष से जुड़ा हुआ है कि किस तरह से लोगों का जीविका उसके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि ओल्गा टेलिस केस में बताया गया था, जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट बना था। और आज जो बदलते परिस्थिति में जिस तरह से सरकार और पूंजीवादी वर्ग जिस तरह से एसोल्ट कर रहे हैं पूरी तरह से आम जनता के जीविका के ऊपर, तो दिल्ली जैसे शहर में कारखाने बंद होते तो घर जाते हैं तो काम बंद होता है, और बहुत ही बड़े बड़े संख्या में, लाखों की संख्या में लोग छोड़ के ये शहर जा रहे हैं। तो एक चीज अच्छा है कि इस बिल में जो आया है कि चेंज इकोनॉमिक सिनेरियो है, उसमें जो स्टेडियम, फ्लाईओवर, बड़े बड़े होटल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस का जिक्र किया है, मगर उसका सबसे बड़ा वीकनेस ये रह जाता है जो चैप्टर 4 के 2 नंबर में है कि इवन व्हेन इट इज नेसेसरी टू डू सो इट विल बी डन, जो प्रोजेक्ट का जरूरी को संभल के करते हैं। बस ऐसा एक ही क्लॉज से हर एक एविक्शन जस्टिफाई किया जाता है दिल्ली शहर में। और दूसरा है कि शायद मेरे हमारी बहन किसी ने बताया था, जो पब्लिक की बात है वो हमेशा यहाँ बताया जाता है कि वो पब्लिक के यूज के लिए है, तो जमीन हमेशा पब्लिक ही होता है और लोग हमेशा एनक्रोचर्स ही होते हैं, चोर होते हैं, लूटमार होते हैं, पॉकेट पिकेटर्स होते हैं। ताकि हमारे कोर्ट में भी, जैसे सरिता ने बताई, दे आर सीन एज पिक पॉकेटर्स एंड टू गिव रिलोकेशन टू देम इज लाइक pickpocketer. So we have to define that we are public, the people are public, the slum dwellers are public, and zameen cannot, owners of the land of Delhi और या कोई भी शहर का, वो सरकार कदापि है नहीं। बस, और अगर ये बहुत ही प्रैग्मेटिक तरीके से हमें बनाना पड़ेगा, तो मेरे को लगता है कंसेंसस आ रहा है एनक्रोचमेंट, एविक्शंस और लोगों के खर्चा लेकर, उस पर कम से कम एक ब्रॉड सहमति हो जाए, क्योंकि मेरे को पता नहीं किस तरह से इतने सारे पॉइंट्स को लिया जाएगा। lot of migrants who come from rural villages who come to work there and stay on the pavements, roadsides, footpaths. So they are also into the threat of eviction. Recently what happened is last August to December in Madras, about some 40,000 people were evicted because they want to beautify the pavements. So they allotted some 20 crore rupees to build the pavements and the people were bulldozed. So we need to keep that also into conscious. And second thing is, like, we just mentioned housing. We never mentioned about the standards of housing. In UN they have said about 100 square feet should be allotted to the family. And now people don't even get them 21 square feet. It relates to the health of it. As per the growing needs of the family, the standards of housing, ventilation, rooms, the toilets, all these things has to also be mentioned.
बहुत ही अच्छे सुझाव आए। इस कानून को काफी परिवर्तन लाना जरूरी है, इसमें काफी चेंजेस लाना जरूरी है। मैं सोच रहा हूं कि आज शाम को इंग्लिश और हिंदी में बना के इसको डिस्ट्रीब्यूट करके दोबारा चर्चा किया जाए। बात यह है कि 6 महीने के अंदर, कम से कम मेरा सुझाव है कि 6 महीने के अंदर सबके सहमति लेते हुए सरकार के सामने एक कानून रखना बहुत जरूरी है। एक सरकार यहां तक जाने के लिए तैयार है कि बेदखली पर थोड़ा रुकावट लाने के लिए तैयार है, और ये बेदखली को अगर हम इसको नियंत्रण में ला सकता, बेदखली पूरी तरह से रुकना मुझे नहीं लगता कि संभव है, लेकिन बेदखली अगर इस पर नियंत्रण ला सकता है और कंट्रोल कर सकता तो काफी हमारे लिए फायदा होगा। सबसे पहले सुझाव ये है कि पुराना एक बिल है जो पूरी डिटेल में बनाया था, उस पर देखना जरूरी है। इसको हिंदी में अनुवाद करके इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, इंग्लिश और हिंदी में इसका सर्कुलेशन हो। मैंने इस बिल को गौर से पढ़ा, मुझे लगा कि ये सरकार, क्योंकि ये बिल काफी डिटेल में है, इस पर चर्चा करना और इसको पास करना काफी मुश्किल है, लेकिन सबको देना जरूरी है। ये बिल अंग्रेजी और हिंदी में बना के सबको देगा। इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, शहर के नहीं लेकिन सिर्फ ग्रामीण इलाकों का भी है और अलग अलग किस्म का है, ये भी देखना जरूरी है। एक दूसरी बात ये है कि टाइटल में चेंज करना जरूरी है। शायद ये हो सकता है कि फोर्स्ड इविक्शन प्रोहिबिशन एक्ट ऐसा कोई शब्द हो, अर्बन पुअर को निकालना और इसमें बेदखली बंद करने का या बेदखली पर नियंत्रण करना या बेदखली को रोकने का कानून हो, ये ऐसा टाइटल हो। ये मेरे ख्याल से ये सुझाव आया, ये होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इंक्रोचमेंट का शब्द निकालना चाहिए, ये बात सही है, और कुछ और शब्द से स्लम का जो डेफिनेशन है वो करना पड़ेगा। जैसे ने सुझाव किया कि ये सरकार की गलती की वजह से ये स्लम जैसे सिचुएशन परिवर्तन हो गया। गरीब इतने खराब हालत में रहता, ये नहीं कि वो आके किसी का जमीन कब्जा कर लिया, लेकिन ये हुआ क्योंकि सरकार के जो नियम है और सरकार के जो पॉलिसीज है वो गलत है, तो इसमें परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। तो इसका टाइटल शब्द में चेंज होना जरूरी है और भीतर का जो है वो भी चेंज करना जरूरी है। फिर मास्टर प्लान, जैसे शहर का जब योजना बनाता है, सिर्फ सरकार बैठ के बनाएगा ये गलत है, लेकिन सरकार संगठनों के साथ में बैठ के करना ये बहुत जरूरी है, ये सुझाव है। फिर बेदखली के बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि सारे बेदखली बंद हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये जब बनाएगा और सरकार के पास जाएगा तो सरकार इसको पूरी तरह से चेंज करेगा। तो किस तरह से करना ये बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं कि बेदखली ज्यादातर बंद होना चाहिए, पूरा बंद होना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर, क्योंकि हम जो बनाएंगे वो सरकार के पास चला जाएगा, अपनी तरफ से हम लोग लिखेंगे, करेक्ट, अपने तरफ से हम लोग लिखेंगे कि बेदखली पूरा बंद होना चाहिए, कोई फोर्स्ड इविक्शन न हो। और अगर सरकार करना चाहेंगे तो आपके साथ बैठ के पूरा प्लान बना के, अगर लोगों का सहमति है तो कर लेगा, नहीं तो नहीं करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें सरकार काफी चेंजेस करके पास करेगा। लेकिन ये तो पता लग जाना है कि राय क्या है, करेक्ट। तो अपने तरफ से हम सभी का राय ये कि बेदखली के बारे में ऐसा एक क्लॉज हो कि बेदखली पूरा बंद हो। सरकार उसको लेते हुए क्या करेगा वो अलग बात है, लेकिन कम से कम अपनी तरफ से बेदखली बंद हो, ये है। फिर किसी ने सुझाव किया कि ये सिर्फ झुग्गी झोपड़ी का नहीं है, बल्कि जो लोग पेमेंट पर रहते हैं या जो लोग जिसका घर ना हो, गरीब लोग जो झुग्गी में नहीं रहते लेकिन इसका घर ना हो, उसके लिए भी कुछ होना चाहिए, सरकार का कुछ जिम्मेदारी होना चाहिए, उसके लिए भी कुछ हो। हाँ, ये काफी मुद्दे आए। मैं सोच रहा हूं कि एक दूसरा ड्राफ्ट बने अंग्रेजी हिंदी में, शायद आज शाम तक अगर हो, ताकि निकलने के पहले सभी के पास एक रहेगा और आने वाले 6 महीनों के लिए इस पर चर्चा हो कि सरकार के सामने क्या पेश किया जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि कम से कम 6 महीना लगेगा कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम ये निर्णय लो कि 6 महीने के अंदर हमारी पूरी कोशिश होगी कि 6 महीने के अंदर सरकार को
या 3 महीना अगर हो, 3 या 4, 5, 6 महीने के अंदर सरकार को एक अपने तरफ से, संगठनों की तरफ से एक कानून बना के दे ताकि सरकार कुछ कर पाएगा। मेरे ख्याल से सरकार का मन में कुछ है करने का। हम तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सरकार कुछ 10%, 20% करना चाहेंगे, लेकिन कम से कम अगर बेतकलीफ पर कुछ रुकावट हो, ये बहुत कामयाब होगा हमारे लिए। तो साथियों, आज शाम तक हो जाएगा, ये अंग्रेजी हिंदी में दूसरी ड्राफ्ट बना के देगा, उस पर मतलब काफी चर्चा होगी। मेरे ख्याल से 3, 4, 6 महीना लगेगा। एक सवाल whether the purpose of this act, so Mr. Colvin, I want to clarify whether the purpose of this act is to prevent evictions completely, or is it to provide housing facilities for the controversial, maybe we call it urban poor, people who don't have houses and are living in urban areas? Because the entire matter inside the act would change if we decide, what to do. And the other thing I wanted to clarify is that though we all believe that there should not be any eviction, putting that as a condition in the act, I go by your view that it is not going to be passed at all. It will not be taken, it will stop the act in its first stage only. So can we qualify that further? Like, okay, don't have evictions for state-owned land or non-legal land completely, but for central government land or for private land, you have to negotiate maybe step by step, because just कुछ भी नहीं हो सकता है, तो वो तो जिसके लिए हो सकता है वो भी नहीं हो पाएगा। कानून जो बनाया जाएगा ये 2 किस्म के लिए है। एक है कि बेदखली बंद हो, दूसरी बात यह है कि गरीब के लिए कुछ जगह जमीन का अधिकार दो, लोगों को जमीन दिया जाए, लोगों को थोड़ा पैसा दिया जाए, कर्ज दिया जाए, ताकि वो घर बना सकेगा। So it is for land and housing on one hand, and it is to stop evictions on the other. I think when we say that, then we need to also get into providing what somebody said about registration of land, because कर्ज पे घर तो दिया है, 20 साल का कर्ज करके लोग लेते हैं, फिर eviction की possibility है। Actually, राजीव, मैं चाहता हूं कि जितने लोगों ने सुझाव दिया ना, उनका एक छोटा सा कमेटी बनाए, ताकि लोग इस पर मतलब चर्चा कर सकते। काफी सुझाव आया और पॉजिटिव सुझाव भी है। और राजीव, पुराना बिल जो है इसका भी जेरोक्स कर निकाला जाए, सभी को डिस्ट्रीब्यूट करे, एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाए।
राष्ट्रीय आवास अधिकार मंच भारत, सम्मानीय लोकसभा को संसद भवन नई दिल्ली। हम नीचे हस्ताक्षर करने वाले जो घर भारत के नागरिक निवेदन करते हैं कि आवास के अधिकार को संविधान में बुनियादी अधिकार के रूप में शामिल और हर नागरिक को आवास का अधिकार निश्चित किया जाए। बलपूर्वक बेदखली पर रोक लगाई जाए। किसी को भी अपने घर या झोपड़े से बेदखल करना पड़े तो यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी माननीय बुनियादी सुविधाओं के साथ अपने काम की जगह के निकट ही आवास उपलब्ध कराया जाए। नंबर 2, गरीबों के लिए सभी शहरों में निजी एवं सार्वजनिक आवासीय उपयोग की भूमि पर 30% आरक्षण कानून बनाकर उस पर सख्ती से अमल किया जाए। गरीबों के लिए भूखंड 40 से 60 वर्ग मीटर रखा जाए ताकि गरीब वर्ग भी उसका लाभ ले सके। नंबर 3, पीने के पानी, बिजली, ड्रेनेज व्यवस्था, सीवरेज, शौचालय, सड़क की व्यवस्था और समय समय पर कचरा साफ करने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए ताकि गरीब बस्तियों में भी स्वास्थ्य जीवन संभव हो सके। नंबर 4, मूलभूत आवश्यकताएं जैसे बच्चों के लिए स्कूल, बीमारों के लिए अस्पताल, गरीबों को दिए जाने वाले सस्ते अनाज के लिए राशन की दुकान की युक्त व्यवस्था की जाए। गरीब लोग जिस भूमि पर रह रहे हैं उस भूमि पर उन्हें मालिकाना हक दिया जाए। धन्यवाद। अभी जो बताया है वो हम बांग्ला में बोल रहा है। राष्ट्रीय आवासन अधिकार मंच भारत, सम्मानीय लोकसभा अध्यक्ष संसद भवन नया दिल्ली। मान्यवरेषु আমরা ভারতের বাস্তুহারা ও ঝুপড়িবাসী নাগরিক স্বাক্ষর সহ নিবেদন করতেছি যে 1. আবাসনের অধিকারের সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিককে স্থায়ী বাসস্থানের অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে হবে। বলপূর্বক উচ্ছেদ বন্ধ করা হোক। যদি কোনো কারণে কোনো ব্যক্তিকে তার বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করা হয় তবে সমস্ত রকম মানবিক সুযোগ সুবিধা সহকারে সেই ব্যক্তিকে কর্মস্থল নিকটবর্তী অঞ্চলে যেন স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। ভারতের প্রত্যেক শহরে বসবাসযোগ্য নিজের সার্বজনীন জমি শতকরা 30% গরিব মানুষের বাসস্থানের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে। এই বিষয়ের ওপর যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করা হোক। ওই ভূখণ্ডে 40 থেকে 60 বর্গ মিটার হিসাবে জমি প্লট করা হোক যাতে গরিব মানুষ সুবিধা নিতে পারে। যে সমস্ত অঞ্চলে গরিব মানুষ বসবাস করে সেখানে পানীয় জল, বিদ্যুৎ, জল নিকাশি ব্যবস্থা, শৌচালয় ও উপযুক্ত সড়ক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়
অন্তর ওই সমস্ত বাসস্থানের অঞ্চলের থেকে ময়লা পরিষ্কার করতে হবে, যাতে গরিব মানুষ দুর্গন্ধমুক্ত সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করতে পারে। যে সমস্ত জায়গায় গরিব মানুষ বসবাস করছে এবং করবে, সেই অঞ্চলে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য স্কুল, অসুস্থ মানুষের জন্য হাসপাতাল, গরিব মানুষের জন্য স্বল্প মূল্যে খাদ্য দ্রব্যের রেশনিং ব্যবস্থা যথাযুক্তভাবে গড়ে তুলতে হবে। গরিব মানুষ যে সমস্ত দখলি জায়গাতে বসবাস করছে, সেই জমির উপর তাকে তার আইনসঙ্গত মালিকানা अधिकार देवा हो। धन्यवाद। संसद को याचिका करते हैं तो संसद के अंदर अपने कुछ साथी लोग हैं जो इसको संसद में रखने के लिए तैयार है, बोल रहे हैं कि आप यदि ऐसा लेके आते हैं तो हम करने को तैयार है। इसको पढ़ के देखिए, यदि इसमें कोई कमी है, यदि कुछ बदलना है तो बदला जा सकता है और फिर अपन इसको हर भाषा में अनुवाद करके अलग अलग जगह से जो हमारे बेघर साथी है, जो झोपड़पट्टी में रहने वाले साथी है, वो सही करके अपन लोकसभा को सांसद को दिया जा सकता है।